students, welcome to PYQ series JEE Mains April 2023. आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी. Today we are going to discuss all numerical value type question from all the shifts that are based upon these concepts: electric current, drift velocity, Ohm's law, resistance and resistivity. Let's get started. This question came in 6th April, first shift 2023 examination. The length of a metallic wire is increased by 20% and its area of cross section is reduced by 4%. The percentage change in resistance of the metallic wire is dash. Students, the length of a metallic wire is increased by 20%. That means final length has become 1.2 times of original length. करेक्ट है. लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%. मतलब जो लेंथ पहले L1 था, नाउ दैट हैज बिकम 1.2 टाइम्स ऑफ L1. सो L2 फाइनल लेंथ इज 1.2 टाइम्स ऑफ L1. करेक्ट है सर. एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज reduced बाय 4%. दैट मीन्स स्टूडेंट्स A2 इज इक्वल्स टू 0.96 टाइम्स ऑफ A1. करेक्ट है. एरिया इज reduced बाय 4%. दैट मीन्स जो एरिया पहले A1 था, नाउ दैट हैज बिकम 0.96 टाइम्स ऑफ A1. सो A2 इज 0.96 टाइम्स ऑफ A1. यस सर. द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर इज हाउ मच? स्टूडेंट्स, आप मुझे ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए. यस, टेल मी. रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय द फॉर्मूला rho L by A. Yes sir. What is L? Length of the wire. What is A? Its area of cross section. What is rho? Resistivity, also called as a specific resistance. R is definitely resistance of the wire. Beta, can I say using this formula that R2 divided by R1 will be equals to L2 divided by L1 into A1 divided by A2? Yes, very simple. Beta, rho, that is resistivity, specific resistance, depends on the material. In this question आपने material change नहीं किया है, so rho will remain the same in both the cases. तो रेशियो आप लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. So R2 upon R1 is equals to L2 upon L1 into A1 divided by A2. Is that fine with you? I think values are directly given to you. बस आपको substitution करना है. So students, R2 divided by R1 will give you L2 upon L1. Sir, what is L2 upon L1? It is 1.2. Yes. Multiplied by A1 upon A2. Sir, what is A1 upon A2? It is 1 upon 0.96. Yes, beta. A1 divided by A2 is 1 upon 0.96. So you can make it this way. थोड़ा step wise कर लेता हूँ मैं. Make this 12. So you get 10 raised to minus 2 divided by, sir, make this 96. In fact 12 आप करोगे, so this is 10 raised to minus 1. Make this 96 बेटा, so 96 into 10 raised to minus 2. Now 12 into 8 will give you 96. So this is students 10 raised to minus 2. ऊपर you get 10 raised to plus 2. So 2 minus 1 is 1. So 10 raised to 1 is 10 divided by 8. So this will give you students 5 divided by 4. That is 1.25, sir. 5 by 4 is 1.25. That simply means R2 divided by R1 is 1.25. That means students R2 is 1.25 times of R1. Final resistance is equals to 1.25 times of original resistance. That means resistance have increased by 25%. जो वैल्यू पहले R1 था बेटा, वही वैल्यू हो चुका है 1.25 टाइम्स ऑफ R1. दैट मीन्स रेजिस्टेंस 25% से इंक्रीज हुआ है. सो अगर हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ जाए तो द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर इज डैश. एंड स्टूडेंट्स, वो डैश में हम पुटअप करने वाले हैं प्लस 25%. प्लस आपको याद दिलाता रहेगा कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बड़ा है और कितने परसेंटेज से सर? 25% से. ईजी है बेटा. नाउ स्टूडेंट्स, इन केस आपको ये स्टेप वाइज सॉल्व करना है, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे ही आप सॉल्व करें जैसा मैंने आपको पढ़ाया. बट स्टिल इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ नॉट कन्विंस्ड, आपको ज़्यादा स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो आप ऐसे करना. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज़ करना स्टूडेंट्स. परसेंटेज चेंज ओवर हियर, लेट मी टॉक अबाउट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस. सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी change in resistance
divided by original resistance multiplied by 100. Beta, what is change in resistance? R2 minus R1 divided by original resistance is R1, correct है? What is R2 upon R1 students? R2 upon R1 is 1.25 minus R1 cancel, you will get 1 into beta 100. So this is 0.25 into 100, that is definitely 25%. ओके, तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया. डेफिनेटली ये आप एग्जाम में फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, इसमें काफ़ी टाइम जाएगा बेटा. ओके, बट ये आपको आंसर समझा कैसे मिला मुझे? प्लस 25%. यस, सो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25%. दैट्स योर आंसर. ओके, दिस क्वेश्चन केम इन 8th April first shift 2023 examination. A current of 2 ampere flows through a wire of cross sectional area 25.0 millimeter square. The number of free electrons in a cubic meter are 2.0 into 10 raised to 28. The drift velocity of the electrons is dash into 10 raised to minus 6 meter per second. Given charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so students, a current of 2 ampere, I is equals to 2 ampere, flows through a wire of cross sectional area A 25 millimeter square, that is 25 into 10 raised to minus 6 meter square. The number of free electrons in a cubic meter are, that means NV दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको. NV number of electrons per unit volume 2 into 10 raised to 28. The drift velocity, that is VD, is equals to dash multiplied by 10 raised to minus 6 meter per second. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, आप भी जानते हैं ये, तो मैं यहाँ डेटा में उसे नहीं लिख रहा हूँ. बेटा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज़ करना होगा फिर तो. कैन आई से स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज गिवन बाय जे डिवाइडेड बाय एन वी टाइम्स ऑफ ई. यस सर, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट इज जे बेटा? करंट डेंसिटी. व्हाट इज एन वी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज ई? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. So what we can do here is, instead of J, that is current density, हम लिख सकते हैं current divided by area बेटा. current divided by area, current divided by area of cross section. J का replacement है ये. NV as it is, छोटू E also as it is. Yes sir. So I think values है आपके पास, directly आपको substitution करना होगा. Students, VD drift velocity is equals to I. What is the value of I? 2 ampere divided by NV. NV is 2 into 10 raised to 28 multiplied by A, area of cross section 25 into 10 raised to minus 6 meter square into छोटा e बेटा, charge on one electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay sir, so this 2 will cancel out. आप इसको लिखिएगा, 1 divided by 25 into 1.6 will give you 40. Students ये होगा 10 raised to 22 minus 19 10 raised to 3. मैं उसे ऊपर ट्रांसफ़र करके लिख रहा हूँ 10 raised to minus 3. आपको यहाँ 10 raised to minus 6 चाहिए, राइट? तो आप इसको ऐसे लिखिए, मेक इट 1000. 1 को मैंने 1000 लिखा सर, सो दिस बिकम्स 10 raised to minus 6 डिवाइडेड बाई 40 एज इट इज़. 0 आप कैंसिल आउट कर रहे हैं. 100 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 25. 25 into 10 raised to minus 6. This is the answer of drift velocity students. 25 into 10 raised to minus 6. So unit should be meter per second. Now we have to do direct comparison. उनके हिसाब से VD is dash into 10 raised to minus 6 meter per second. हमारे सॉल्विंग के हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 25 into 10 raised to minus 6 meter per second. That means ये डैश का वैल्यू होने वाला है 25. So the answer for this particular numerical value type question is 25. Are you following this beta? Yes. This question came in 8th April, second shift 2023 examination. The number density of free electrons in copper is nearly 8 into 10 raised to 28 per meter cube. A copper wire has its area of cross section is equals to 2 into 10 raised to minus 6 meter square and is carrying a current of 3.2 ampere. The drift speed of the electrons is dash into 10 raised to minus 6 meter per second. Okay, so students, the number density of free electrons in copper is, that is NV, number of electrons per unit volume is
8 into 10 raised to 28 per meter cube. Its area of cross section is A equals to 2 into 10 raised to minus 6 meter square. It is carrying current I is equals to 3.2 ampere. Its drift speed Vd is given as dash into 10 raised to minus 6 meter per second. Okay, looks to be a straightforward question based upon the formula of drift velocity. Students, drift velocity is given by the formula J divided by NV times of E. J is current density. तो करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन वी एज इट इज़, ई ऑल्सो एज इट इज़, ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एन वी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. आई थिंक फॉर्मूला के RHS में जितने भी टर्म्स है सबका वैल्यू है आपके पास, तो सब्सटीट्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा आपके लिए. लेट्स डू इट फटाफट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी सर, वी डी इज इक्वल्स टू आई, द वैल्यू ऑफ आई इज 3.2 एम्पियर divided by A. Sir, what is A? 2 into 10 raised to minus 6 meter square. NV, number of electrons per unit volume, 8 into 10 raised to 28 per meter cube. Chotu E, charge on 1 electron, sir, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. Now students, 2 into 1.6 is 3.2. So 3.2 will cancel out with 3.2. So this is equals to 1 divided by 8, 10 raised to, ये दोनों मिलके हो जाएगा प्लस 22. 22 माइनस 19 विल गिव यू 3. आप उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे, यू विल गेट 10 raised to minus 3. नाउ स्टूडेंट्स 1 divided by 8 विल गिव यू 0.125. करेक्ट है. 1 by 8 is 0.125 into 10 raised to minus 3 as it is. Definitely this will be meter per second. But I think उनका जो रिक्वायरमेंट है उसमें डैश है, बट 10 raised to minus 6 है. ओके, नो प्रॉब्लम सर. तो आपको शिफ्टिंग करना रहेगा. आप इसको ऐसे करिए ना, वी डी इज इक्वल्स टू, मेक इट 125. सो आई थिंक वी आर शिफ्टिंग 3 डेसिमल. सो 10 raised to minus 3 एंड minus 3 मिलके हो जाएगा 10 raised to minus 6 मीटर पर सेकेंड. सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज 125 इंटू 10 raised to minus 6 मीटर पर सेकेंड. सो रिक्वायरमेंट ऐसा ही है, डैश है बट 10 raised to minus 6 मीटर पर सेकेंड है. सो ये डैश के जगह पर आना चाहिए 125. यस. सो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा इन दिस क्वेश्चन 125. इजी है. यस. दिस क्वेश्चन केम इन 10th April first shift 2023 examination. 10 resistors, each of resistance 10 ohm, can be connected in such a way as to get maximum and minimum equivalent resistance. The ratio of maximum and minimum equivalent resistance will be dash. Okay, so there are 10 resistors. Number of resistors, sir, will be n equals to 10. हर एक का जो resistance है, let me consider each resistance is R. Value is given to you 10 ohm. Okay, they are connected in such a way that we are getting maximum and minimum equivalent resistance. Okay sir, so we have to find out the ratio of R maximum to R minimum. करेक्ट है. एंड उनके हिसाब से ये रेशियो है बेटा डैश. ये डैश आपको डिटरमाइन करना है. स्टूडेंट्स, कैन आई से व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हमें रेजिस्टेंस मिलेगा मैक्सिमम, एंड व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हमें रेजिस्टेंस मिलेगा मिनिमम. तो उनके हिसाब से जो आर मैक्स है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारे हिसाब से आर एस होने वाला है. आर एस स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. बेटा इन दिस क्वेश्चन द गुड पार्ट इज सभी रेजिस्टर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, तो आपको स्टेप वाइज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो NR. हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो R है, आपने कितने रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगाने हैं N, तो RS हो जाएगा NR. करेक्ट है बेटा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल्स टू NR विच इज़ R मैक्स. देन व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलने वाला है मिनिमम. अगर रेजिस्टर्स इक्वल ना होते इंडिविजुअल तो आपको स्टेप वाइज करना पड़ता. 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. बट ये क्वेश्चन में स्टूडेंट सबका वैल्यू सेम है,
तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट से कर सकते हैं R डिवाइड बाई N। R इज हर एक का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, N विल बी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो बेटा जो रेशियो होगा R मैक्स अपॉन R मिनिमम, दैट इज R in series divided by R in parallel, that will be equals to NR divided by N. So R will cancel out, आपको मिलने वाला है बेटा N into N, N square, as per the data N का जो वैल्यू है वो 10 है स्टूडेंट्स, so 10 raised to 2 should give you 100. Yes sir, so required ratio is 100 बेटा। रेजिस्टेंस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मिनिमम या फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 100. सो दिस इज योर आंसर. इजी है, राइट? This question came in 10th April 2nd shift 2023 examination. A rectangular parallelepiped is measured as 1 centimeter into 1 centimeter into 100 centimeter. If its specific resistance is 3 into 10 raised to minus 7 ohm meter, then the resistance between its two opposite rectangular faces will be dash into 10 raised to minus 7 ohm. बेटा इन दिस क्वेश्चन क्लियरली आप समझिए, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, डायग्राम इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ दिस पार्ट. स्टूडेंट्स, अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड इज मेजर्ड एज 1 सेंटीमीटर into 1 centimeter into 100 centimeter. Okay, तो बेटा this should be 1 centimeter, obvious है. This should be 1 centimeter and this length is 100 centimeter, correct? Dimensions given है इसके 1 centimeter, 1 centimeter, this will be 100 centimeter. If its specific resistance मतलब resistivity rho का वैल्यू इज 3 into 10 raised to minus 7 ohm meter, then the resistance between its two opposite rectangular faces will be. Now this statement is very important students. Resistance between its two opposite rectangular faces. बेटा this is rectangular face 1, this is rectangular face 2, करेक्ट है? rectangular face 1, rectangular face 2, इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा? ओके, so that resistance is given as some dash is there into 10 raised to minus 7 ohm. So ये डैश आपको डिटरमाइन करना है बेटा, करेक्ट है? नाउ स्टूडेंट्स, द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो हम आज के लेक्चर में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज रो टाइम्स ऑफ L बाई ए. रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ रो इज गिवन टू यू 3 into 10 raised to minus 7 ओहम मीटर, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, इनटू लेंथ. बेटा आप लेंथ कौन सा कंसिडर करोगे? आपको क्लियरली बताया जा रहा है, आपको इन दोनों फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस ढूंढना है, इन दोनों, तो इन दोनों के बीच का लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये 1 सेंटीमीटर लेंथ लेना है सर आपको. 1 सेंटीमीटर इज 10 raised to minus 2 मीटर डिवाइडेड बाय सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बेटा आप ये वाला लेंथ कंसिडर कर रहे हो, सो दिस शुड बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट है? आप बताइए मुझे क्या होगा ये वाला एरिया? दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 1 into 100, दैट इज 100, बट यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा 100 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर, दैट इज 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वायर. कन्वर्जन समझा आपको? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वायर. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. सो टोटल आपको मिलने वाला है 3 into 10 raised to minus 7, एंड सर दिस इज द आंसर ऑफ रेजिस्टेंस. सो फॉर श्योर जो यूनिट होगा वो होगा ओहम, राइट? सो उनके हिसाब से R इज डैश इंटू 10 raised to minus 7 ओहम, हमारे हिसाब से R इज 3 into 10 raised to minus 7 ओहम. दैट मीन्स ये डैश का वैल्यू है 3. सो दिस इज योर आंसर. बट अगर आपने डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ किया, आपने स्टेटमेंट ठीक से रीड किया, तो आपको एग्जैक्टली समझेगा लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है, देन इट विल बी इजी. ओके, दिस क्वेश्चन केम इन 12th April 1st shift 2023 examination. The current flowing through a conductor connected across a source is 2 ampere and 1.2 ampere at 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. The current flowing through the conductor at 50 degrees Celsius will be dash into 10 raised to 2 milliampere. Okay, so at 100 degrees Celsius
given value of current is 2 ampere at 100 degree Celsius, current is 1.2 ampere, and at 50 degree Celsius what will be the numerical value of current? This is the question, right students? 0 degree Celsius पे current है 2 ampere, 100 degree Celsius current is 1.2 ampere, at 50 degree Celsius what will be the value of current? Now students, in case of conductor we know that as temperature increases its resistance also increases, and because of that the current will decrease. आप समझे बच्चों मेरी बात? टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके वजह से करंट कम होगा. आप चेक कर सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, 100 पे करंट देखिए कम हो गया. बट ओवर हियर देयर इज़ अ प्रॉब्लम. आपको अल्फा का वैल्यू नहीं दिया ना. अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो पहले हम क्या करेंगे, हम यूजिंग दिस डेटा अल्फा डिटरमाइन करेंगे. सो दैट इज लाइक स्टेप नंबर 1. अल्फा इज क्वेश्चन मार्क. अल्फा सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? करेक्ट है. नाउ स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला ऑफ अल्फा जो हम जानते हैं वो होता है आर टी माइनस आर ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर ज़ीरो टाइम्स ऑफ टी. सर आर ज़ीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, टी इज़ द टेम्परेचर, अल्फा इज मैं आपको बता चुका हूँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं. सो हमें आर टी का फॉर्मूला पता चलेगा. आर टी विल बी आर ज़ीरो टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा टी. इज दैट फाइन विथ यू? आर टी इज इक्वल्स टू आर ज़ीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी. बट आप बोलोगे सर हमें तो डेटा करंट में दिया हुआ है. ओके नो प्रॉब्लम, ओम्स लॉ का नॉलेज यूज़ कर लीजिए. आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर. आप वी तो सेम रख रहे हो थ्रू आउट दिस क्वेश्चन. सो आई एंड आर द रिलेशन विल बी इनवर्स. सो मैं ऐसा लिख सकता था आर टी इज आर ज़ीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी. सो आई ज़ीरो विल बी आई टी, इनवर्स है ना बेटा, तो आई ज़ीरो विल बी आई टी इंटू 1 प्लस अल्फा टी. सर व्हाट इज आई ज़ीरो? करंट, इलेक्ट्रिक करंट एट 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज आई टी? इलेक्ट्रिक करंट एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस. सो आई ज़ीरो, टेल मी व्हाट इज आई ज़ीरो बेटा? करंट एट 0 कितना गिवन है? 2 एम्पियर. आई ज़ीरो इज 2 एम्पियर, दैट इज आई टी. करंट एट टी डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस है वो टी है, तो आई टी क्या होगा? 1.2 एम्पियर होगा सर, इंटू 1 प्लस अल्फा यू डोंट नो, टेम्परेचर सर 100 डिग्री सेल्सियस. ये समझा स्टूडेंट्स आपको क्या चल रहा है यहाँ पर? आई थिंक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फा हम यहाँ से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हेल्प करिए. 2 डिवाइडेड बाई 1.2 क्या होगा? 5/3. 0.4 into 5, 0.4 into 3, so 5/3. Sir 5/3 will be 1 plus alpha into 100. 5/3 minus 1, 2/3 sir. So 2/3 is alpha times of 100. So the numerical value of alpha should be 2/3 into 10 raised to plus 2. हम वहाँ ट्रांसफर करेंगे, we get 10 raised to minus 2. So alpha temperature coefficient of resistance here is 2/3 into 10 raised to minus 2 per degree Celsius. This is your step number 1, जिससे आपने अल्फा ढूंढ लिया. अब स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम ये अल्फा का इस्तेमाल करेंगे एंड हम ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे. यस, सो आप बताइए. रिसेंटली हमने आपको आर टी का फॉर्मूला बताया. आर टी इज़ आर ज़ीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी. उसका यूज़ करके करंट का फॉर्मूला हमने प्रिपेयर किया. इसको स्टेप 2 में मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर दे रहा हूँ, दैट्स इट. तो बेटा आई ज़ीरो एज इट इज़ करंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेम है सर आई टी. आई एम रिप्लेसिंग आई टी बाई आई टी डैश, नया करंट जो आपको ढूंढना है सर, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा विल बी कॉन्स्टेंट, इंटू टेम्परेचर टी को मैं टी डैश से रिप्लेस कर रहा हूँ. दूसरा कोई टेम्परेचर यूज़ करना है, कितना है सर? 50 डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट्स आई ज़ीरो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई ज़ीरो विथ यू? आई ज़ीरो सर 2 एम्पियर, दैट इज़ आई टी डैश. आई टी डैश सर हमें डिटरमाइन करना है इंटू 1 प्लस अल्फा. सर दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा 2/3 इंटू 10 raised to minus 2 पर डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर टी डैश सर व्हाट इज़ टी डैश? नया टेम्परेचर सर 50 डिग्री सेल्सियस. यस. नाउ स्टूडेंट्स 2 into 50 is 100, मतलब 10 raised to 2 एंड ये 10 raised to minus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपको मिलने वाला है 2 इज इक्वल्स टू आई टी डैश इंटू 1 प्लस 1/3, 1 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया 2
एंड इंटू 50 इंटू 10⁻², 1/3 स्टिल देयर. अब ठीक है, सो 2 विल बी इक्वल्स टू IT डैश multiplied by 1 plus 1/3 will give you sir 4/3. So this is 2 into 2 giving you 4. So 3 divided by 2 will be IT dash. The required value of current is 3/2 यानी 1.5 ampere students. So IT dash is equals to 1.5 ampere. correct है. बट अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करें सो विल कम टू नो उनको आंसर थोड़ा अलग फॉर्मेट में चाहिए. उनको चाहिए 10⁻² मिली एम्पियर के फॉर्म में. लेट्स सी. बट आप इसको ऐसे लिखिए ना, 1.5 इंटू 10⁻³ सो एम्पियर विल कन्वर्ट इनटू मिली एम्पियर. अच्छा, उनको 10⁻² मिली एम्पियर के फॉर्म में चाहिए, तो 10⁻³ में से एक 10 आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए. 1.5 इंटू 10 विल बिकम बेटा 15. सो 15 इंटू 10⁻³ विल बिकम 2 मिली एम्पियर. मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट. अब ठीक है बेटा, तो उनके हिसाब से जो आंसर है वो है डैश इंटू 10⁻² मिली एम्पियर. सो बेटा डैश का वैल्यू होगा 15. सो दिस 15 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बेटा आप समझे स्टूडेंट्स, ये अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का नॉलेज कैसे यूज़ करना है आपको. इट्स अ गुड क्वेश्चन. यस.